Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so let's start. So in the previous session, let me do a little bit of recap. What we did in the previous session. So in the previous session, we were doing Power BI service. Okay. So what is Power BI service? It is a cloud-based service provided by Microsoft. And the main purpose of Power BI service is collaboration, right? And sharing. How can you share your work with others? Okay. And we saw different features that how can you create dashboard? How can you publish your report to Power BI service? What are the two ways to create dashboard? One is using Pin Live and second is using Pin Visual. Then we also saw that how can we refresh our report, which is on Power BI service. Okay, and we saw there are two ways. One is a manual refresh and second is a scheduled refresh, right? Where you can create your calendar and automatically the data will get refreshed on it. Okay, and that is where we stopped. Any questions from anybody? Any doubts? Hanji. Okay, now I don't know I have an access to Power BI services or not. When I click on the publish, it generates a link for me. It means I haven't Power BI access or something. No, I think for that you need to create an account. By default, you will not have. No, but I need to corporate account. So when I click on publish, it saves my work and then generates a link. Like when I click on publish, then I use. When you click on that link, what happens? Then it opens up a page for everybody. So if I give an access to that particular page to anyone, and that person can access that. That means that I have publishing right. Yes. Okay. If you're getting a link, I'm getting a link. Then you click on that link, then you go to a website, right? It means that you have access. So like a Power BI service kind of an interface, right? It means that you have access. Any other question from anybody? Any other doubt? सर ये जो आपने असेसमेंट किया था, हाँ जी बोलिए। जो आपने असाइनमेंट दिया था उसमें ना मेरा जो टाइम सीरीज का एनालिसिस वाला था ना, जो रिपोर्ट बनानी थी, वो एक्टिव केसेस और विथड्रॉन केसेस का वो वाला नहीं बना मुझसे। ठीक है, मैं उसको दिखा देता हूँ कैसे बनाना है, राइट? और वो आपको किसी मेल पे शेयर करना है, कैसे शेयर करना है? नहीं, शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम है, कोई आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? And if you are able to create successfully, then that's fine. Okay. मुझे पता कैसे लगेगा वो सही बनाया गलत? तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं एडमिन को, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, so that I can have a look. Okay. ठीक है, तो ठीक है। आपके पास एडमिन का ईमेल आईडी होगा, तो जस्ट नहीं, लेकिन मैं मांग लूंगा। हाँ, तो आप उनको ईमेल कर दे, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। जस्ट राइट इन द ईमेल की फॉरवर्ड टू राजीव। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके. Okay, so let me show you how to create the time series analysis. So let me open. ओके, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये इसकी बात कर रहे हैं आप, राइट? टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ एक्टिव एंड विथड्रॉन केसेस। यस। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम सीरीज एनालिसिस? टाइम सीरीज मतलब कितने साल, कौन से साल कितने एक्टिव है, कितने विथड्रॉन केस हुए हैं, ट्रेंड। और क्या लगता है आपको? टाइम सीरीज डेटा इज मूविंग विद टाइम। डेटा मूविंग विद टाइम। ओके, वेरी गुड। व्हाट एल्स? टाइम सीरीज से मतलब आपका वर्ड में क्या मतलब निकल के आता है?
उसमें चेक करना है कि टाइम निकालना है कि 2021 में 2020 में कितने लोग एक्टिव थे, तो हम डेट पे क्लिक करेंगे तो हमें वो एक्टिव होने एक्टिव वाला ठीक ठीक है. विद रिस्पेक्ट, फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट? इस क्वेश्चन को भूल जाओ. जनरली स्पीकिंग टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस वर्ड से मतलब क्या लगता है आपको? इसका जनरली Time is क्या मतलब? one of the time is one of the factors. Time is one of the axis. Absolutely correct. Very good. That is the right answer. Right? इसका मतलब ये है कि टाइम इज वन ऑफ द फैक्टर, और यू कैन से टाइम इज ऑन वन ऑफ द एक्सिस. ठीक है? आपके दो एक्सिस होते हैं जनरली, एक एक्स एक वाई. तो आपके एक्स एक्सिस पे टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी. टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? ईयर हो सकती है, मंथ, क्वार्टर, डे, आवर, मिनट्स, सेकेंड्स. बट एक बात श्योर है, आपके एक एक्सिस पे टाइम की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है. दूसरे एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है. दैट इज व्हाट टाइम सीरीज इज ऑल अबाउट. ओके, तो अभी मैंने बोला एक टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ एक्टिव एंड विड्रॉन केसेस. सो लेट्स क्रिएट. तो लेट मी लॉन्च पावर बीआई डेस्कटॉप. Click on blank report. Let me load our data. So get data, Excel workbook. और हमारे डेटा का क्या नाम था? planning.excel, राइट? ओके, तो मैं एक लाइन चार्ट बनाता हूं. तो एक लाइन चार्ट मैंने ऐड कर दिया. एक्स एक्सिस से मैंने बोला कोई टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो लेट मी पुट ईयर इनटू एक्स. और मुझे किसका ट्रेंड देखना है? एक्टिव और विड्रॉन का. तो मैं आईडी को ले आता हूं. आईडी को मैंने डाल दिया वाई पे, और मैं आईडी का लूंगा काउंट. ठीक है? तो अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ट्रेंड आ गया है, राइट? लेकिन मुझे एक्टिव और विड्रॉन का सेपरेट सेपरेट करना है. तो अगर एक ही लाइन को हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो किसके बेस पे डिवाइड कर सकते हैं? लेजेंड के बेस पे. ठीक है? तो मेरे पास मेरा जो स्टेटस कहां पर है, एक्टिव है या विड्रॉन है स्टूडेंट, वो मेरा स्टेटस है स्टेटस कॉलम. तो अगर मैं स्टेटस कॉलम को ड्रैग करके लेजेंड में डाल दूंगा तो क्या होगा? एक लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि स्टेटस में मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक्टिव एंड विड्रॉन. ठीक है? तो मैं स्टेटस को ड्रैग करता हूं, इसको लेजेंड में डालता हूं. तो ये अब दो लाइन आ गई. डार्क ब्लू लाइन किसका ट्रेंड बता रही है? विड्रॉन का. और एक्टिव लाइट ब्लू लाइन एक्टिव का स्टेटस बता रही है. अब इसमें बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट है. अब आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो बाय एडिंग स्लाइसर्स. ठीक है? तो यूजर देख सके जैसा वो देखना चाहे. तो हम एक स्लाइसर ऐड कर लेते हैं, so that they can actually reduce the data amount of data which we are showing. तो एक स्लाइसर ऐड कर लेता हूं. तो स्लाइसर मेरा ये है. इसको हम ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डाल देते हैं, और मैं ईयर को डाल देता हूं अपने फील्ड. तो मैंने एक स्लाइडर दे दिया. ठीक है? अभी 1990 से 2020 तक का डेटा शो कर रहा है. तो अगर आप इसको रिड्यूस कर दोगे तो आपका डेटा थोड़ा कम हो रहा है. मैं यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ. तो लेट्स से आपको लास्ट 10 ईयर्स का देखना है, तो यहाँ पे इसको स्लाइड करते हैं. नाउ यू हैव द ट्रेंड of active and withdrawn cases only for the last 10 years. तो मैंने एक स्लाइडिंग का ऑप्शन दे दिया है एज ए स्लाइसर. तो यूजर कैन चेंज द स्लाइडर एंड मूव द स्लाइडर एंड कैन सेलेक्ट ए डेट रेंज एज पर हिज रिक्वायरमेंट. इज दैट क्लियर? सो थोड़ा डेटा पॉइंट्स कम हो गए हैं, तो वी कैन सी क्लियरली द ट्रेंड. आई होप इट इज क्लियर कैसे करना है इस क्वेश्चन को. ओके, यस सर. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी?
Any other doubt? Rajiv, instead of year, Hmm. can we take the status column, which has active and withdrawn as a slicer, and then Yes. show the view? That is also Yes. one of the correct ways, right? Because I did that way. या तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, तो यू कैन हैव मल्टीपल स्लाइसर्स एज वेल, नो प्रॉब्लम. सो मैं एक डेट का भी ऑप्शन देना चाहता हूँ यूजर को, ताकि वो डेटा फिल्टर कर सके ईयर के बेसिस पे, और मैं स्टेटस के बेस पे भी एक फिल्टरिंग ऐड कर देता हूँ, एक स्लाइसर ऐड कर देता हूँ. तो स्टेटस को मैंने ड्रैग किया और इसको फील्ड में डाल देते हैं. तो अगर मान लीजिए मुझे एक्टिव का ही स्टेटस देखना है, तो एक्टिव का together स्टेटस, cleanly. विड्रॉन का देखना है, विड्रॉन का देखना, दोनों का एक साथ देखना है तो दोनों का एक साथ देख लो, राइट. तो दो मैंने स्लाइसर के ऑप्शन दे दिए टू डू दी फिल्टरिंग, ठीक है, एज पर द चॉइस. या स्टेटस ऑल्सो कैन बी स्लाइसर, नो प्रॉब्लम. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? अच्छा बन गया सारा, कोई प्रॉब्लम? दिखाओ. नहीं ब्लैक क्यों कह रहे हो, बेकार क्यों बोल रहे हो उसको? ठीक तो लग रहा है, कोई बात नहीं. तो आप 2 पेजेस पे बनाओ, एक पार्ट कर दो प्लानिंग रिपोर्ट पार्ट 1, प्लानिंग रिपोर्ट पार्ट 2, 2 पेज पे बनाओ, ठीक है. तो सारा एक पेज पे बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. आपने वहाँ पे क्वेश्चन था कि विड्रॉल के परसेंटेज बताने, हम्म. वो नहीं आया सर, दोनों ही आ रहे साथ. तो इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों ही आएगा. अभी दोनों दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. अभी एक नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी आपने फॉर्मूलेज पढ़े नहीं, ठीक है. तब आप मेजर बनाओगे तो आप सिंगल को भी दिखा सकते, ठीक है. तो अगर पाई चार्ट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि पाई चार्ट में ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है. या डोनट चार्ट में इसको कर दो, तो ये डोनट में कन्वर्ट हो गया, तो आपका विड्रॉन का परसेंटेज आ गया है 50.6%, ठीक है. तो विच इज ए मच बेटर चार्ट देन बार चार्ट, ठीक है. हाँ जी, बैठो. हाँ जी. हम्म. हम्म. ठीक है, अभी क्लास के बाद देख लेते हैं, ठीक है. अभी क्लास के बाद. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. तो आज के टॉपिक स्टार्ट करें. ओके, तो लेट मी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर क्वेरी. सो व्हाट इज पावर क्वेरी? कैन एनीबॉडी टेल मी? पावर क्वेरी क्या होता है? यूज फॉर क्लीनिंग द डेटा, ठीक है, क्लेंजिंग द डेटा. और किस लिए यूज कर सकते हैं पावर क्वेरी को? सिर्फ क्लीनिंग के लिए? To analyze. टू एनालाइज, Yeah, ठीक है. to मॉडिफाई द डेटा. मॉडिफिकेशन को एक क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो. डेटा क्लीनिंग क्या होता है? जो प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स करना, लेकिन डेटा को हमें मॉडिफाई भी करना होता है ताकि वो हमारे लिए बेटर बन जाए, उसको हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है. तो दोनों काम के लिए यूज कर सकते हो. कभी कभी हम इसके लिए बोलते हैं डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा प्रिपरेशन, डेटा मंजिंग, डेटा रैंगलिंग. दे आर ऑल वन एंड सेम थिंग. मतलब डेटा को रेडी करना है किस पर्पज के लिए? डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, राइट. तो अलग अलग टर्म्स यूज कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग, डेटा मंजिंग, डेटा रैंगलिंग, डेटा प्रिपरेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेट्रा. ओके. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मानिए डेटा आपने इकट्ठा किया, यू हैव डन द डेटा कलेक्शन, ठीक है. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस व्हिच कुड बी देयर इन द डेटा? ब्लैंक्स हो सकते हैं, double हो सकते हैं. डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, Yeah, duplicates. नल वैल्यूज हो सकती हैं, और एरर बताइए, वैल्यू हो सकती है. एरर्स हो सकते हैं,
और बताइए। डेटा टाइप चेंज भी हो सकता है। डेट इनकरेक्ट डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है। हाँ। मान लीजिए डेट है लेकिन उसको आपने नंबर कर दिया या उसको टेक्स्ट कर दिया, तो डेट कॉलम को अगर मैं टेक्स्ट कर दूंगा तो क्या उससे कोई एक्सट्रैक्शन कर सकता हूं मैं? कुछ नहीं कर सकता, तो यार डेट रिलेटेड काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है। इनकरेक्ट फॉर्मेट, इनकरेक्ट डेटा टाइप। और बताइए और क्या प्रॉब्लम हो सकती है डेटा में? केस, अपर केस लोअर को मैं प्रॉब्लम नहीं बोलता, राइट। वो मैं उसको उसको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आप कह सकते हो कि मुझे अपर केस में डेटा चाहिए, बट देर इज डेटा के एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। इनकरेक्ट वैल्यू से मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपका एक लाइन में मतलब वैल्यू की जगह 20% लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, वही सेम दूसरी जगह पे मतलब और से वैल्यू है पर वहां पे 20 आ रहा है तो वहां पे 30 या 40 आ रहा है। वो डेटा एंट्री का प्रॉब्लम है। हाँ, तो डेटा एंट्री को आप फिक्स नहीं कर सकते। किसी ने गलत डेटा एंटर कर दिया तो डेटा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो डेटा एक्यूरेसी को हम ठीक नहीं कर सकते। कैन यू वैलिडेट कि डेटा करेक्ट है या नहीं है? नो। हम बस डेटा एनालाइज कर सकते हैं जो हमें डेटा प्रोवाइड करा गया। वी कांट गारंटी कि अगर डेटा ही गलत दे दिया तो हम उसको गारंटी दे सकते हैं कि क्या है, कि ठीक है या ठीक नहीं है, ठीक है। सो डेटा एक्यूरेसी आई कांट रिजॉल्व। वो डेटा एंट्री के अंदर अगर किसी ने गलत एंटर कर दिया तो आई कांट डू इट। डेटा स्कैट, आई वोंट से दैट्स ए प्रॉब्लम, ठीक है। जनरली कंपनीज में डेटा हमेशा एक टेबल में नहीं होता है, करेक्ट। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द एंटायर डेटा इन ए सिंगल टेबल, सो डेटा विल बी स्प्रेड अक्रॉस ऑन मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। virtually not possible to have the entire data in one table, ठीक है। तो I won't say that's a problem, I would say that's a best good practice to keep data in separate tables। और बताइए डेटा के अंदर और क्या क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं? डेटा क्वालिटी इश्यूज बोलते हैं हम इनको, राइट, कि क्वालिटी ऑफ द डेटा इज नॉट गुड। तो क्वालिटी इश्यूज में हमने काफी चीजें देखी, और बताइए और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है डेटा के अंदर? सब लोग करते होंगे कुछ ना कुछ एनालिसिस। ओके। और काफी एक आउटलायर भी हो सकते हैं। आउटलायर्स क्या होते हैं? एबनॉर्मली हाई, एबनॉर्मली लो वैल्यूज, करेक्ट, दैट्स अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। एबनॉर्मली हाई वैल्यू और एबनॉर्मली लो वैल्यू हो तो वो आपके रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एडवर्सली, करेक्ट। फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, और आप जाते हैं वहां देखते हैं कि कितने कितने पैकेज लगे हैं बच्चों के वहां पर, स्टूडेंट्स के, ठीक है। और आप देखते हैं कि पैकेज लगा है 30 लाख रुपए का पैकेज ऑन एन एवरेज। तो इज दैट ए गुड इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉलेज? मान No. लीजिए तो 90% लोगों के 5-5, 5-5, 6-6 लाख के पैकेज लगे, कुछ स्टूडेंट्स के 80-80 लाख के पैकेज लगे, मुश्किल से 2 या 3 के, तो एवरेज आपका शूटअप हो जाता है, करेक्ट। तो क्या वो हमें करेक्ट रिजल्ट दे रहा है अबाउट दी परफॉर्मेंस? बस 2-3 लोगों के इतने अच्छे पैकेज लग गए तो हमारा शूटअप हो गया एवरेज। तो इसीलिए कॉलेज वाले बताते हैं कितना पैकेज लग रहा है हमारे स्टूडेंट्स पर, होता कुछ ही स्टूडेंट्स का है। परफॉर्मेंस कब पता चलेगी? जब सारे बच्चों के अच्छे लग रहे होंगे ना। तो इसीलिए एवरेज इज नॉट ए गुड इंडिकेटर इन दिस केस। इस केस में विच इज ए गुड इंडिकेटर? मीडियन इज ए गुड इंडिकेटर, राइट। परसेंटाइल इज ए गुड इंडिकेटर, मीडियन इज द बेस्ट इंडिकेटर। मीडियन मतलब मीडियन पैकेज क्या लगा, मतलब 50%। मीडियन वैल्यू क्या होती है? 50% स्टूडेंट्स के से नीचे पैकेज होगा, 50% उससे ऊपर होगा, राइट। तो अगर एवरेज निकालूंगा तो मेरा शूटअप हो जाएगा, इन्फ्लेट कर देगा कुछ एबनॉर्मली हाई वैल्यूज, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं एक अच्छा एनालिसिस करना चाहता हूँ तो उस एबनॉर्मली हाई वैल्यूज को मैं हटा दूंगा अपने डेटा से, या और भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो और भी तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के, बट एक ट्रीटमेंट है आई कैन रिमूव दैट वैल्यू, ठीक है, एंड देन इट विल गिव मी ए मच मोर सेंसिबल नंबर। इसी तरह बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, उसको भी मैं हटा दूंगा। तो इसको भी हम बोलते हैं आउटलायर ट्रीटमेंट,
ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डेटा के अंदर कभी कभी आप वैल्यूज देखते होगे जो सेंस नहीं बन रहा रेस्ट ऑफ द डेटा से। ठीक है, पूरे वैल्यूज में सेल्स आ रही है और कुछ वैल्यूज आ गई -999999। कभी आपने डेटा नोटिस किया होगा, ऑल्दो अगर हम देखें सेल्स कॉलम में अगर आपको ऐसी वैल्यू दिख जाए, ऐसे सेल्स हो सकती है क्या? राइट, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो जनरली क्या होता है, जब कोई डेटा एंट्री कर रहा होता है तो वो टाइपिंग इश्यूज या फिर उसको फ्लैग करने के लिए कि उसको करेक्ट डेटा नहीं मिला, तो वहां पे कुछ ऐसी स्पेशल वैल्यू टाइप कर देता है। इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल वैल्यूज। ये डेटा नहीं है, ठीक है, तो बस उसको फ्लैग करने के लिए कि यहाँ पे मेरे पास करेक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसको छोड़ने के बजाय उसने एक स्पेशल वैल्यू को, हाँ, एक डिफॉल्ट वैल्यू उसने इंसर्ट कर दी, ताकि लेटर ऑन समझ जाए कि यहाँ पे कुछ कुछ नहीं था और हमारे पास डेटा एंट्री नहीं हुई। तो ये पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर करते थे कि खाली छोड़ने की जगह कोई स्पेशल वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं, एरर्स देख सकते हैं, कभी लिखा हुआ एरर आ रहा है, राइट। फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एक कॉलम में आधी वैल्यूज डेट है, आधी वैल्यूज नंबर है, करेक्ट। तो आप उस कॉलम को आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या रखोगे, डेट रखोगे या नंबर रखोगे? तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि काफी प्रॉब्लम्स डेटा के अंदर हो सकती है, और दैट इज व्हाई डेटा एनालिस्ट का आई वुड से 70 to 90% टाइम डेटा क्लीनिंग में लगता है। ठीक है, तो अगर जितना आप डेटा को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे उतना ही आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप कहोगे डेटा विजुअलाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है, नो, डेटा क्लीनिंग टेक्स अप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ए डेटा एनालिस्ट। ठीक है, 70 to 90% ऑफ द टाइम आप यहीं पे स्पेंड करते हैं डेटा को ठीक करने में। ठीक है, वेरी रेयरली यू विल गेट परफेक्ट डेटा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो हमने जनरली देखा कि पावर क्वेरी क्या है, हम पावर क्वेरी को बोलते हैं कि ETL टूल है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, विच प्रोवाइड्स मेनी फंक्शंस टू क्लीन द डेटा। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं जो क्लीन कर सकते हैं। लेकिन पावर क्वेरी की सबसे अच्छी बात क्या है, द बेस्ट पार्ट ऑफ पावर क्वेरी इज दैट यू डो नॉट हैव टू राइट एनी फॉर्मूला। कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको अपने माउस से क्लिक करना है और आपका डेटा क्लीन होता जाएगा, एंड पावर क्वेरी विल डू दी कोडिंग फॉर यू। आपके बिहाफ पे वो आपके लिए कोडिंग करेगा। ठीक है, तो दिस इज पावर क्वेरी। तो लेट्स ट्राई टू सी पावर क्वेरी कैसे यूज करते हैं। तो हम कुछ और डेटा भी लोड कर लेते हैं, लेट्स सी, फाइनेंशियल सैंपल भी कर लेते हैं। सर ETL में एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन L का क्या बताया सर आपने? लोड, लोड, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है, डेटा को डेटा सोर्स से एक्सट्रैक्ट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, वंस इट इज ट्रांसफॉर्म यू कैन लोड इट। ठीक है, फॉर फर्दर टास्क। ठीक है, तो मैंने एक और डेटा लोड कर दिया, फाइनेंशियल्स। ओके, तो एक छोटा सा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक फाइनेंशियल टेबल है और मेरे पास एक कॉलम है, कंट्री कॉलम, और इसके अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब मैं डेटा विजुअलाइजेशन में इतना बड़ा नाम नहीं शो करना चाहता, और मैं चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह क्या आ जाए, बस US आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको डेटा कैसे करेंगे, पावर क्वेरी को स्टार्ट करने के लिए हम बटन पे क्लिक करते हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म डेटा। तो इस बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म डेटा। अब ऊपर देखो, आपके पास मैसेज आ रहा है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर, राइट। यहाँ पे आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग कर सकते हो। ठीक है,
तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो मैं कंट्री कॉलम को ढूंढता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेलेक्ट किया, कंट्री कॉलम पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है रिप्लेस वैल्यूज। अब आपके पास वही स्क्रीन आ गई जैसे एक्सेल में आता है, कंट्रोल एफ करने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस, ये वही वाला ऑप्शन है, वैल्यू टू फाइंड। अब वैल्यू टू फाइंड में मैं टाइप कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको मुझे किससे रिप्लेस करना है? US। अब आप देखो सब जगह यूएस आ गए, ठीक है। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक ये चेंज आपके डेटा में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। व्हाट यू आर सीइंग इज जस्ट ए प्रीव्यू ऑफ द डेटा। डेटा में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डू यू सी एन ऑप्शन कॉल्ड एज क्लोज एंड अप्लाई। मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूं, मेरे पास तीन ऑप्शन आएंगे। क्लोज एंड अप्लाई मतलब इसका क्या है कि पावर क्वेरी एडिटर बंद हो जाएगा और चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे पूरे डेटा सेट पे। सेकंड ऑप्शन है अप्लाई, चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे सारे डेटा सेट पे लेकिन पावर क्वेरी एडिटर बंद नहीं होगा, ठीक है। और क्लोज पे क्लिक कर दोगे तो पावर क्वेरी एडिटर बंद हो जाएगा विदाउट अप्लाइंग द चेंजेस टू द डेटा सेट। इज दैट क्लियर? तो मैं इस पे क्लिक करता हूं क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई करते कंट्री कॉलम में मेरा यूएस चेंज हो गया मेरे डेटा। इज दैट क्लियर? तो हमने अभी देखा एक छोटा सा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम है रिप्लेस वैल्यू। ठीक है, अब वापस आते हैं, फिर से हम करते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक। एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव ए सेक्शन कॉल्ड एज अप्लाइड स्टेप। जब भी कोई डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा क्लीनिंग आप करेंगे वो उसका एक रिकॉर्ड रख रहा है, ठीक है। इट विल कीप ऑफ रिकॉर्ड वॉट एवर द चेंजेस यू आर मेकिंग टू द डेटा, ठीक है। तो मैंने लास्ट में एक वैल्यू रिप्लेस करी थी, एक स्टेप ऐड हो गया जिसका नाम है रिप्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो स्टेप्स चेंजेस कर रहे हैं डेटा के अंदर वो सारा यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो एक और काम करते हैं फिर देखते हैं इस जगह क्या चेंज आता है, ठीक है। मैं कोई कॉलम का नाम चेंज करता हूँ। लेट से मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है डिस्काउंट बैंक, ठीक है। तो इसका मैं चेंज कर देता हूँ नाम डिस्काउंट, सिर्फ डिस्काउंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉलम का नाम कैसे चेंज करेंगे? राइट क्लिक एंड आई हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड एज रीनेम, और इसको मैं कर देता हूँ डिस्काउंट कुछ और नाम लिख देते हैं, डिस्काउंट एरिया। तो कॉलम का नाम चेंज हुआ और यहाँ पे देखो आपका एक और स्टेप ऐड हो गया जिसका नाम है रीनेम्ड कॉलम। इज दैट क्लियर? तो आपका जो भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है उसका यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करा जा रहा है, इसको लॉग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि सबसे पहली बात, पावर क्वेरी के अंदर अनडू नाम का कोई बटन होता नहीं, ठीक है। कोई चेंज को अनडू करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ना कंट्रोल जी यहाँ काम करेगा ना ही कोई अनडू का बटन है, ठीक है। तो अगर कोई चेंज आपको अनडू करना है तो आप उसका रेलेवेंट स्टेप यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पुराना नाम ही चाहिए था डिस्काउंट का, तो मैं इस स्टेप के सामने एक क्रॉस आ रहा है, इस क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो इस स्टेप को मैं डिलीट कर देता हूँ। क्रॉस पे करते ही ये स्टेप डिलीट हो गया, डिलीट होते वापस डिस्काउंट बैंड आ गया नाम। इज दैट क्लियर? दैट इज हाउ यू अनडू। और जब तक आप क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे, क्लोज एंड अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो चेंज इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो एक तो अप्लाई स्टेप का फायदा ये है कि आप एक तो देख सकते हैं कि आपने क्या क्या डेटा के अंदर चेंज किया है, लॉग मिल जाए आपको, कोई भी कभी भी देख के आप पता लगा सकते हैं कि मुझे ओरिजिनल डेटा मिला था, उसके बाद मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस करे, क्या क्या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया। और सेकंड एडवांटेज, हाँ जी बोलिए सर। दो चीज, एक मान लीजिए कि मैंने कंट्री में चेंज किया और प्रोडक्ट में भी जाके चेंज कर दिया, दोनों में गलती थी।
सो उस केस में क्या 2 बार चेंज टाइप आएगा? हाँ, मैंने बोला जो भी चेंज कर रहे हैं वो सब आपका रिकॉर्ड रखेगा। ओके, ठीक है। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक टैग लगा देगा चेंज टाइप। हम्म। एक्चुअली मैं जाके मैं अगर इसको क्लिक करूंगा या कुछ करूंगा तो क्या मेरे को कुछ दिखेगा कि हमारे क्या क्या चेंजेस किए हैं? हाँ देखो, अभी मैं एक काम करता हूँ, कुछ और, एक डिस्काउंट बैन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो राइट क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन आ गया रिमूव। रिमूव करते डिलीट हो गया मेरा कॉलम। ठीक है, एक और स्टेप ऐड हो गया जिसका नाम है रिप्लेस कॉलम। ठीक है, और मैं रिप्लेस वैल्यू में जाता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, रिप्लेस वैल्यू में जाके मैं अगर ये वाला ऑप्शन जाके डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैंने क्या किया था। मैंने डबल क्लिक किया, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किससे रिप्लेस किया था, Correct. यूएस से रिप्लेस किया। ठीक है, अगर इसमें मैं दो चीजें रिप्लेस करूं एक ही कॉलम में तो वो दो अलग अलग स्टेप्स ऐड करेगा, राइट? एक ही यस, कॉलम में अगर दो चीजों को रिप्लेस करूं तो। करेक्ट, लेट्स और डू दैट। या कंट्री में गए, लेट्स कनाडा को, और कौन सी कंट्री है हमारे पास, लेट्स से मैं मैक्सिको को कर देता हूँ मैक्स। ठीक है, जस्ट टू चेक, राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू, चलो लास्ट में आते हैं और फिर से राइट क्लिक करते हैं, रिप्लेस वैल्यू मैक्सिको, और उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ, एब्रीविएटेड फॉर्म में मैक्स। अब देख रहे हो एक और यहाँ पे स्टेप ऐड हो गया, रिप्लेस वैल्यू। ठीक या है, क्लियर है सर। वन मोर थिंग, अपने अप्लाई स्टेप सेक्शन को थोड़ा और इंफॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए इन अप्लाई स्टेप को भी आप रीनेम कर सकते हैं, ताकि आपके पास क्लैरिटी रहे कि आपने क्या किया है। अब इससे मुझे नहीं पता चला रिप्लेस वैल्यू मैंने क्या किया है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको रीनेम कर दूंगा, एंड आई विल से रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर यूएस। अब मेरे लिए आसान है, मैंने इस स्टेप में क्या किया था, तो आप अपने स्टेप को रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे मैं कह देता हूँ रिप्लेस्ड, अब मेरे स्टेप थोड़े डिस्क्रिप्टिव हो गए हैं, तो अब आपके पास क्लैरिटी रहेगी आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या डेटा के अंदर चेंजेस करे। इसीलिए फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यूरोप की 2 कंट्रीज आ हम्म, फ्रांस एंड हम्म, अगर जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ यूरोप हम्म, करना है हम्म, तो कैन वी डू दैट? यस यस यस, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नया कॉलम। जरूरी यस, फ्रांस की आप उसको हम ग्रुपिंग बोलते हैं, हम उनको ग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आइडियली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उस ओरिजिनल कॉलम में आप करो, एक नया कॉलम क्रिएट करो, और उसके अंदर क्या करो, जर्मनी और फ्रांस को आप क्लब कर दो कि वो यूरोप है। ठीक है, कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे करते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो यू कैन रीनेम योर स्टेप्स एज पर योर चॉइस। ठीक है, अंडू सबको क्लियर है, अंडू कैसे करते हैं? वन मोर थिंग, जब भी आप कोई स्टेप करेंगे, मैंने रिप्लेस मैक्सिको किया, एंड नाउ डू यू सी दैट इज कोडिंग is being done automatically to implement this change. Automatically कोड लिखा गया, table dot replace value, replaced remove column Mexico with max, something like that. ठीक है, तो कोडिंग हमें करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग ऑटोमेटिकली हो रही है इन द बैकग्राउंड, आप माउस से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा GUI बेस्ड इंटरफेस है, लो कोड नो कोड एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडली, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है कोड? नो, ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये इंग्लिश तो नहीं लग रही मुझे, है एम लैंग्वेज। ठीक है, तो पावर क्वेरी में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है? उसका नाम है एम लैंग्वेज। दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पावर क्वेरी। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है एम की? मैशअप, मतलब मैशअप मतलब क्लीन अप। ठीक है, तो जनरली शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं एम, एम लैंग्वेज। तो अगर मैं यहाँ पे वापस आऊं,
और अगर मुझे देखना है कि शुरुआत से लेके अब तक क्या कोडिंग हो चुकी है, तो ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है एडवांस एडिटर। ठीक है, मैं एडवांस एडिटर पे क्लिक करूंगा और मेरे पास देखो अब तक इतनी कोडिंग हो चुकी है। ठीक है, पहले मेरे पास डेटा आया, फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ रिप्लेस किया, फिर मैंने कोई कॉलम रिमूव किया, एंड फाइनली मेरे पास ये फाइनल स्टेप। इज दैट क्लियर? ये सारा कोडिंग किस लैंग्वेज में हो रहा है? एम लैंग्वेज। ठीक है, अब तक इतनी कोडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सर एक बार फिर से बता दीजिए, और ये कौन से लैंग्वेज में हो रहा है आपने कहा? एम लैंग्वेज ये मैंने लिखा है। आई मीन मैं पहली बार सुन रहा हूँ, सो ये इट पहली इज बार सुन रहे हैं। जस्ट, हाँ, इज एक्सेल दिस में भी होता है। जस्ट, आई थॉट, ओके, ठीक है, ओके। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, M language is only and only for Microsoft applications, इसीलिए M बोला है Yes, क्या? Is that what you correct. said? नहीं, Okay. ये और एक एम है और जिसको जनरली हम किस लिए यूज करते हैं? डेटा क्लीनिंग के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है ये। ठीक है, क्या okay, ये अकेले पावर बीआई में अवेलेबल है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी अवेलेबल है एम लैंग्वेज। तो यू कैन डू द डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल एज वेल। ठीक है, okay, okay, okay. तो Fair. यानी कि जो आप एम लैंग्वेज यहाँ लिख रहे हैं वो एक्सेल में भी काम करेगा। ठीक है, But then, Got it. Rajiv, is this just a Microsoft language? Like यस। same language for cleanup can be used in Tableau also? नहीं, नहीं ना, तो Microsoft है। Tableau is from other company, Salesforce, ठीक है। राइट? तो वहां पे एक एम का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, सिर्फ ये कहाँ पे काम करती है? एक्सेल में काम करेगी और पावर बीआई, Got it. माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एम लैंग्वेज? क्या आप काम क्या है इसका एम लैंग्वेज का? डेटा क्लिक। ठीक है, पर आपको कुछ इसके बारे में बॉदर होने की जरूरत नहीं है कि मुझे एम लैंग्वेज सीखना चाहिए। अगर आपको सीखने का मन है तो सीख सकते हैं। ठीक है, बट पावर क्वेरी में आपको ऑटोमेटिकली कोडिंग हो रही है। ठीक है, जैसे आपने एडवांस एडिटर खोला, हम्म, जो आपका लास्ट हम्म, स्टेप था वो लेट के बाद तीन में है, हाँ, तो वो हमेशा ऐसे लेता है। ऐसे रहेगा। लेट के मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो लेट के अंदर होते हैं। ठीक है? और इसको यहाँ पर replace like हम्म, हम्म, नहीं, अभी तो कोडिंग इतनी ऑलरेडी हो चुकी है ना। लास्ट टैग वाला रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे चेंजेस अप्लाई नहीं हुए, है ना? आई होप इट इज क्लियर। अंडू कैसे करना है? अगर अंडू करना पड़े तो आपको उस स्टेप को डिलीट करना पड़ेगा, तभी जाके अंडू होगा। नेक्स्ट थिंग, तो रीडू नहीं होता, आपको फिर से वो स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉलम डिलीट करना सबको क्लियर हो गया? अगर कॉलम कैसे डिलीट करते हैं? हम रिमूव कॉलम, राइट क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिमूव कॉलम। रीनेम करना आ गया सबको? किसी कॉलम को कैसे रीनेम करते हैं? राइट क्लिक करोगे, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने ये सीख लिया कि रिमूव कॉलम कैसे करते हैं। अगर आपको बोला कि रो को डिलीट करो तो वो कैसे करोगे? एक्सेल तो नहीं है, एक्सेल में तो राइट क्लिक करा और डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, मैं मान लीजिए इसको करता हूं तो कुछ नहीं आ रहा। ये देखो, कोई ऑप्शन नहीं आएगा रो के लिए, राइट क्लिक के लिए कुछ नहीं है। तो एक तो ये ऑप्शन है रिमूव रोज, और रिमूव रोज में हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं रिमूव टॉप रोज, मतलब ऊपर से कुछ रो रिमूव डिलीट कर दो। तो रिमूव टॉप रोज, तो मान लीजिए ऊपर से 5 बोल देता हूं तो क्या होगा? टेबल में से ऊपर से 5 फर्स्ट 5 रोज डिलीट हो जाएंगी। ओके करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया रिमूव टॉप रोज। ठीक है, फिर और ऑप्शन है रिमूव बॉटम रोज, मतलब नीचे से अगर कुछ रो डिलीट करनी है तो आप रिमूव बॉटम रोज लेंगे, डिलीट करेंगे। रिमूव ऑल्टरनेट रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर डुप्लीकेट रोज होंगी वो सारी आपकी डिलीट हो जाएंगी रिमूव डुप्लीकेट्स क्लिक करने से ऑटोमेटिकली। ठीक है, रिमूव ब्लैंक रोज, अगर कोई ब्लैंक रो है आपके डेटा में तो ब्लैंक रोज आपके डिलीट हो जाएंगी एक ही क्लिक से। और लास्ट है रिमूव एरर्स, अगर किसी रो में एरर है तो वो रो डिलीट हो जाएगी।
सर एक बार ये रिमूव डुप्लीकेट जो आपने मेरे को अभी जो रिमूव डुप्लीकेट्स का आपने मान लीजिए कि एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडीज है या यूनिक आइडेंटिफायर है या प्राइमरी की जिसको आप कहते हैं, जो भी कह लीजिए वो है, और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है लाइक कंट्री वगैरह, सेगमेंट वगैरह, बाकी सारी डेटा है। सो माय क्वेश्चन इज कि मान लीजिए यूनिक आईडी है 123, ओके, और सेकंड रो में भी आपकी 123 है, but the rest of the information in segment, country, units sold, manufacturing, and all of those information is varying. So are you saying, what are you referring as remove duplicates? Same, exact same information in all the in all the rows? Yes, exact same information in both the rows for all columns. For all columns. For all columns. Okay. अगर एक भी वैल्यू डिफरेंट है, then it is not considered as a duplicate row. Got it. So if I wish to just remove based on a particular Column. yeah, based on a particular column, so 123 123 ये unique ID दो बार repeat हो रही है, so do I have a dedicated button for that, like in? No, there is no dedicated button. And how do I do that if I wish to do that? उसके लिए फिर आपको कुछ और मैनुअल लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट? एज ऑफ नाउ देयर इज नो ऑप्शन इन पावर क्वेरी टू डू दैट, ठीक है? मे बी यू हैव टू यूज सम अदर ऑप्शंस, और कोई लॉजिक आपको ढूंढ के उसको करना पड़ेगा। एज सच पावर क्वेरी क्या है? क्लिक बटन, ठीक है? प्री डिफाइंड ऑप्शंस है, आप So उन्हीं को आप कह रहे हैं कि इसको एक्सेल में ले जाओ और क्लीन करके वापस इसमें डाल दो, इसमें? करेक्ट, दैट्स अनदर ऑप्शन, बट प्री डिफाइंड ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। हाँ, अभी ये क्या है? ये सिर्फ प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं, राइट? अभी भी मेरी ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे, ठीक है? फॉर एग्जांपल रिमूव तो ऊपर से ही करेगा, बॉटम नीचे से ही करेगा, ऑल्टरनेट रो को करेगा, ये डुप्लीकेट को कर देगा, ब्लैंक को कर देगा, एरर्स को कर देगा। लेट्स से मैं वो सारी रोज को डिलीट करना चाहता हूँ। लेट्स से एक एग्जांपल, मेरे एरिया ऑफ स्कोप में कनाडा नहीं आता, मुझे सारी रोज डिलीट करनी है जो कनाडा से बिलोंग करती, तो कैसे करोगे? क्योंकि रिमूव रोज में तो वो ऑप्शन ही नहीं है कि सेलेक्टेड रोज को कैसे डिलीट करा जाए, ठीक है? कीप रोज में उल्टा हो जाएगा, ठीक है? कीप टॉप रोज, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, तो क्या रहेगा? सिर्फ ऊपर से 100 रोज रह जाएंगी, बाकी सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है? अगला ऑप्शन क्या है? कीप रोज में कीप बॉटम रोज, मैं लिख देता हूँ बॉटम से 100 रखो, तो 100 रह जाएंगी, बाकी सारी डिलीट हो जाएंगी, तो यानी रिमूव रोज का ऑपोजिट, राइट? अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो कैसे करेंगे इसको? हैं? यस। तो इन पावर क्वेरी किसी भी रो को डिलीट करने का एक ही तरीका है, आप उसको फिल्टर आउट कर देंगे, ठीक है? उसको फिल्टर करना है, ठीक है? फिल्टर करते ही वो डेटा आपका वो जो रोज होंगी वो वाली आपके डेटा से डिलीट हो जाएगी। तो यानी कैसे रो को डिलीट करेंगे? उनको फिल्टर आउट करना है। तो मैं फिल्टर आउट कैसे करूंगा? जैसे आप एक्सेल में करते हैं, सेम तरीका। मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, मुझे कनाडा वाली रोज नहीं चाहिए, तो मैं उस पर अनचेक कर देता हूं एंड ओके करते ही देखो स्टेप ऐड हो गया जिसका नाम है फिल्टर्ड रोज। अब इसको क्या करेंगे? क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। क्लोज एंड अप्लाई करते ही मैं कंट्री में जाता हूं और कनाडा नहीं। दिस इज द वे यू डिलीट ए रो, बाय फिल्टरिंग इट आउट, ठीक है? अदरवाइज वही कोड, इसका तरीका नहीं। ये अभी जो फिल्टर रो किया आपने, उसको अंडू कीजिए। अब अंडू तो नहीं कर सकते, आपने बोला उसमें क्लिक करके उसको हटा देंगे तो फिर हो जाएगा। एक बार से बुक कर दीजिए प्लीज। इसको क्रॉस कर दिया, फिल्टर रो हट गया स्टेप, और फिर से मैं जाता हूं कंट्री में, तो कनाडा आ गया वापस, ठीक है? कहने का क्या मतलब है कि आपको कोई लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, जिस रो को डिलीट करना है उसका कोई यूनिक आइडेंटिफायर सेलेक्ट करके उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक है? दैट्स हाउ यू हैव टू रिमूव ए रो। ओके, तो रिमूविंग अ कॉलम इज क्लियर एंड रिमूविंग ए रो इज क्लियर। कैसे एक रो को डिलीट करना है, ठीक है? नेक्स्ट, अब मैंने आपको बोल दिया कि रिमूव कॉलम,
तो रिमूव कैसे, कॉलम कैसे करते हो आप? राइट क्लिक करके डिलीट कर, रिमूव कर दोगे। मान लीजिए आपके डेटा के अंदर 100 कॉलम्स है, ठीक है, और 100 कॉलम के अंदर मेरे यूजफुल कॉलम है बस 20। 80 कॉलम मेरे, 80 कॉलम्स मेरे लिए अननेसेसरी कॉलम्स हैं, नॉट वेरी यूजफुल फॉर। अब 80 कॉलम्स को डिलीट करते करते तो कितना टाइम लग जाएगा? राइट क्लिक करोगे डिलीट, राइट क्लिक करोगे डिलीट, 80 कॉलम्स को डिलीट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, 100 कॉलम्स तो कोई बड़ी बात नहीं है। 100 में से यूजफुल मेरे लिए कितने हैं? 20। 80 अननेसेसरी कॉलम्स है। 80 कॉलम को कैसे डिलीट करोगे एक बार? तो राइट क्लिक करना तो बड़ा टीडियस काम है 80 कॉलम के ऊपर जाके। हाँ, मल्टीपल सिलेक्शन भी वो बीच बीच में से आते हैं, तो वो सिलेक्शन भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो लेट मी शो यू कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक प्री डिफाइंड ऑप्शन है, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जिसको हम बोलते हैं चूज कॉलम, ठीक है। तो चूज कॉलम में मैं जाऊंगा और मेरे पास ऑप्शन है चूज कॉलम। तो सारे कॉलम उसने दिखा दिए जो मेरे डेटा में अवेलेबल, मैं सबको अनचेक कर देता हूँ, और जो मुझे चाहिए मैं वो चेक मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, मुझे चाहिए डेट, सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। 4-7 कॉलम चाहिए मुझे बस, ठीक है। ओके करते ही देखो क्या हुआ, बाकी सारे डिलीट हो गए और एक स्टेप ऐड हो गया, रिमूव अदर कॉलम्स। कितने कॉलम रह गए? सिर्फ 7 कॉलम रह गए, बाकी सारे कॉलम डिलीट हो गए। दैट इज हाउ यू कैन डिलीट बल्क कॉलम्स इन बल्क। सर ये क्वेश्चन है, हाँ मतलब जी। क्वेश्चन भी नहीं है, जस्ट ए थॉट, एंड इफ यू कैन वेरीफाई, this is not meant for really the ETL. If someone has to actually clean up the data in a faster method rather than clicking all of those things, won't Excel make sense? मतलब एक्चुअली ये तो टिक 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 करके आप कितना ही कर लेंगे, इससे स्पीड तो मतलब probably someone can do it in Excel or other things and things like that. मतलब अगर एक्सेल ही या माइक्रोसॉफ्ट का एनवायरनमेंट है, वो तो डेडिकेटेड उसके लिए बना हुआ है। इट मे बी एक गुड वन फॉर अगर एक दो चीजें करनी है आपको तो ठीक है, बट नॉट ए फुल फ्लेज। अगर एक्सेल में होता तो 100 कॉलम होते, तो उसमें से 80 डिलीट करने होते तो कैसे करते? हाँ मतलब ठीक है, कॉलम की बात में मेरा सवाल सिर्फ कॉलम से नहीं था, ओवरऑल आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जैसे आपने किसी को कोई रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए बोला और ये सब करने के लिए बोला, इट विल बी फास्टर बिकॉज आप कीबोर्ड यूज कर सकते हो, आप टक 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 मतलब देखो doing it in the mouse will be little, you know. देखो इसका पर्पस अलग बनाया है। पर्पस क्या है पावर बीआई का? मतलब ठीक है, डेटा व्यूइंग एंड डेटा प्रेजेंटेशन, या हाँ, एक और हम लो कोड एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जब आप क्लिक करके बटन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट, सो इट इज मोर प्रेफरेंशियल, किसी की अपनी प्रेफरेंस है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपको जब वन इज मोर कंफर्टेबल विद एक्सेल देन प्रोबब्ली दे कैन गेट इट, यू नो, डायरेक्टली फ्रॉम देयर। पर मैंने बोला कि एक्सेल में भी बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं, ठीक है। मैंने अभी बोला मुझे अगर 80 कॉलम एक्सेल में भी डिलीट करने हैं तो सेलेक्ट करना पड़ेगा उसको। probably one of these things, but हाँ ठीक है, समझ गया, ठीक है सर, गॉट इट, या ओके। सो मैंने अपने 7 कॉलम रख लिए, बाकी मैंने डिलीट कर दिए। इस तरह से इस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? चूज कॉलम, ठीक है। मैं फिर से अनडू कर देता हूँ, वापस आ गए सारे कॉलम। तो चूज कॉलम, अब लेट्स से वही ऐसा सिनेरियो होते हैं, 100 कॉलम्स हैं और उस 100 कॉलम में मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है, ठीक है। तो मैनुअली अगर मैं स्क्रॉल करता रहूंगा उसको ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो कितना बड़ा टाइम लग जाएगा 100 कॉलम में उस कॉलम को ढूंढने में, राइट। तो मैनुअल प्रोसेस है, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करूंगा उस कॉलम को ढूंढने के लिए। इससे अच्छा मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे चूज कॉलम में, एक ऑप्शन है गो टू कॉलम। गो टू कॉलम पे क्लिक किया, जो कॉलम पे जाना है, लेट से मुझे जाना है सेल्स कॉलम पे, सेल्स कॉलम पे सिलेक्ट किया, ओके किया, और सेल्स कॉलम मेरा सिलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया, ठीक है। आई थिंक एक्सेल में भी होता है, कंट्रोल जी ऑप्शन होता है जिसको हम गो टू बोलते हैं। वहां पे सेल एड्रेस टाइप करते हो, उस सेल एड्रेस पे जाते हो, पर यहाँ पे आप उस कॉलम को ही नेविगेट कर सकते हो, डायरेक्टली जा सकते हो, जिसका नाम है गो टू कॉलम। तो आपको मैनुअली सर्चिंग करने की
ढूंढने की कॉलम को जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? व्हाट इज गो टू कॉलम? दिस इज कॉल्ड एज go to column. So let's try to see some more options. अच्छा, मर्ज। अगर दो कॉलम को मर्ज करना है तो हम कैसे मर्ज करेंगे? फॉर एग्जांपल मुझे सेगमेंट और कंट्री को मर्ज करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक किया और मेरे पास एक ऑप्शन आ गया मर्ज कॉलम। ठीक है, अब मर्ज करने के लिए आपसे पूछ रहा है सेपरेटर क्या चाहिए बीच में, तो मैं कह देता हूं लेट से मुझे चाहिए कॉलम। ठीक है, और नए कॉलम का नाम कर देते हैं मर्ज, या इसका काम कर देते हैं सेगमेंट एंड कंट्री। तो मेरा एक कॉलम, दो कॉलम मर्ज हो गए और बीच में एक सेपरेटर आ गया कॉलम। दिस इज द वे यू कैन मर्ज टू कॉलम्स। यस, अभी वो मैंने ऑप्शन देखा नहीं है। ये देखो ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है ऐड कॉलम। ठीक है, तो अभी मर्ज, ये जो मर्ज ऑप्शन है राइट क्लिक वाला, ये क्या करेगा? ओरिजिनल कॉलम को मर्ज कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल कॉलम इंटैक्ट रखने और एक नए कॉलम में मर्ज वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू राइट ए डेक्स फॉर्मूला। जैसे एक्सेल में आप फॉर्मूलाज लिखते हैं, पावर बीआई के अंदर भी फॉर्मूलेज के लिखने का प्रोविजन है। तो यू क्रिएट ए न्यू कॉलम देन ऐड ए फॉर्मूला, तो आपकी नई वैल्यूज एक नए कॉलम में आएंगे, पुराने कॉलम आपके इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ऊपर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, और एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड कॉलम। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे, तो मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर क्लिक करता हूं, तो जो भी ऑप्शंस आप यहां से यूज करोगे तो आपका ओरिजिनल कॉलम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, जो भी ऑप्शन आप ट्रांसफॉर्म मेन्यू के अंदर चूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐड कॉलम मेन्यू के अंदर जाऊंगा और यहां से कोई भी ऑप्शन पिक करता हूं तो क्या होगा? ओरिजिनल कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, आपका एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर नई वैल्यूज, चेंज वैल्यूज आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू यूज ऐड कॉलम दिस टाइम। कॉलम के बाद, हाँ उसके अंदर एक ऑप्शन है, मैंने देखा था उसका। लेट्स ट्राई टू अनडू, लेट्स राइट क्लिक एंड हम जाते हैं मर्ज कॉलम में। हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम वाला। ठीक है, कस्टम में मैं, आप क्या चाहते हो? कॉलन और कॉलन के बाद स्पेस। हाँ, तो ऐसे आ गया ना, तो एक कस्टम ऑप्शन है जहां पे अपने डिलीमीटर आप खुद इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलन और स्पेस ओके करोगे तो अब आपके पास कॉलन और स्पेस दोनों आ गए। ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टम। मर्जिंग इज क्लियर। अब एक ऑप्शन देखते हैं ऊपर ऐड कॉलम के अंदर। मैंने क्या बोला था? ऐड कॉलम में नया कॉलम क्रिएट होगा। तो अब ये एक ऑप्शन है जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट क्या करता है? आपको लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से या मिडल में से कुछ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखो एक्सट्रैक्ट ऑप्शन ऐड कॉलम के अंदर भी है और एक्सट्रैक्ट कॉलम ट्रांसफॉर्म के अंदर भी है। दिख रहा है? सेम ऑप्शन इज अवेलेबल इन बोथ द प्लेसेस। ठीक है, मैं जाता हूं ऐड कॉलम में, कम। ठीक है, और ऐड कॉलम में जाके मैं चूज करता हूं एक्सट्रैक्ट, और मैं कहता हूं फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कुछ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टर करता हूं और मैं कहता हूं 2। ओके करता हूं, तो एक नया कॉलम क्रिएट हो गया और सेगमेंट कॉलम से लेफ्ट 2 कैरेक्टर्स उसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दिए। लेकिन ओरिजिनल कॉलम में कोई चेंज आया? ओरिजिनल कॉलम एज इट इज। तो लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करना क्लियर है, कैसे लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और राइट साइड, ऐसे ही आपके पास ऑप्शन है लास्ट कैरेक्टर, मतलब राइट साइड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और रेंज भी दे सकते हो आप, कहां से कहां तक आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यू कैन प्रोवाइड रेंज
then you have option text before delimiter, text after delimiter, text between delimiter, etc. This is to do the extraction from a text. Is that clear? So that is how you can do the extraction. One more important point. अभी मैंने add column में जाके extract यूज किया था, अब की बार मैं transform में जाके extract यूज करता हूँ और फर्स्ट कैरेक्टर करता हूँ. अब की बार ओरिजिनल कॉलम ही मॉडिफाई हो गया. इज दैट क्लियर? तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है ऐड कॉलम और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन क्या है. नए कॉलम में जाके चेंज रिफ्लेक्ट होंगे, ओरिजिनल कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. ओके. स्प्लिट मर्ज करना हमने सीख लिया, और अब स्प्लिट करना है तो स्प्लिट भी कर सकते हो. तो लेट्स ट्राई टू दी एक को डेटा अपलोड कर लेते हैं थोड़ा सा उसमें. बाय द वे पावर क्वेरी के अंदर से भी आप डेटा अपलोड कर सकते हैं. तो होम में जाएंगे, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू सोर्स, और न्यू सोर्स में मैं एक्सेल वर्कबुक चूज करता हूं और एक और डेटा सोर्स लोड कर लेते हैं सैंपल सुपरस्टोर. ऑर्डर्स भी ले आते हैं. लो, ठीक है. तो एक और डेटा आ गया ऑर्डर्स. अब ऑर्डर से मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है ऑर्डर आईडी. ठीक है. इस ऑर्डर आईडी को मैं स्प्लिट करना चाहता हूं. किसके बेसिस पे? डैशेस के बेसिस पे. ठीक है. दिख रहे हो बीच में सेपरेटर क्या आ रहा है? CA मतलब एक कैलिफोर्निया का ऑर्डर है, डैश 2016 किस ईयर का है, डैश कोई यूनिक आइडेंटिफायर है. ठीक है. तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं एंड देन स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर. डैश ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया उसने. और तीन ऑप्शन है स्प्लिट लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर, मतलब लेफ्ट वाले को यूज करके करेगा, राइट मोस्ट राइट वाले डैश को यूज करके करेगा, और ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमिटर मतलब जहां जहां भी उसको सेपरेट मिलेगा उसको स्प्लिट कर देगा. तो मैं ईच अकरेंस में कर दूंगा तो कितने कॉलम क्रिएट हो जाएंगे? ईच अकरेंस पे करता हूँ. ओके ओके करता हूँ. ओके. एक कॉलम आ गया ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर आईडी 2, ऑर्डर आईडी 3. 3 कॉलम बन गए. इज दैट क्लियर? तो कैसे स्प्लिट कर सकते हो आप? तो मर्ज स्प्लिट देन चेंज केस, अपर से लोअर केस, लोअर केस से अपर केस कैसे करेंगे? लेट्स से कंट्री कॉलम है, मुझे सारे कंट्रीज अपर केस में चाहिए. तो राइट क्लिक, चेंज ट्रांसफॉर्म के अंदर गए एंड आई हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड एज अपर केस. अपर केस करते ही मेरी सारी वैल्यूज अपर केस में चेंज हो गई. दिस इज द वे यू कैन चेंज केसेस. एक्सट्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट साइड से अगर कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, राइट साइड से एक्सट्रैक्शन करना है तो उसको कैसे करना है. ठीक है. मिड मतलब बीच में से, तो रेंज के थ्रू करा. रेंज जो देता है. ठीक है. वो हमने देखा था ना ऑप्शन. फॉर एग्जांपल ऐड कॉलम में गए, एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रेंज. ये बीच में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप. ठीक है. यहाँ पे आप नंबर बता सकते हो कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर. अगर मैं कहता हूँ थर्ड, तब थर्ड कैरेक्टर से वो एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करेगा. और मैं कह देता हूँ 4, तो थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा और 4 कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा. ठीक है. तो लेट्स से कंट्री कॉलम से करते हैं. तो जर्मनी का क्या आ गया? मेनी. ठीक है. तो टेक्स्ट फंक्शन. हाँ जी. जो आप जो स्टार्टिंग इंडेक्स है दैट इज पोजीशन 0, राइट? हाँ करेक्ट. क्योंकि उसने वो इंक्लूड नहीं है उसमें. GR में उसने GR हटा दिया है, उसको 0 कर दिया, उसके बाद से 4 कैरेक्टर लिए हैं, मतलब उसको फर्स्ट नहीं मान रहा है वो. एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आप. करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके. देन हमने देखा एक्सट्रैक्शन, डेट रिलेटेड फंक्शंस. अब एक्सेल में आप डेट रिलेटेड काम कैसे करते हो? मान लीजिए डेट के अंदर से आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है,
तो कैसे करोगे? या क्वार्टर एक्सट्रैक्ट करना है या मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो लेट्स ट्राई टू सी, कोई भी डेट रिलेटेड सेलेक्ट करते हैं कॉलम, डेट पे क्लिक किया। जैसे ही आपने डेट पे क्लिक किया, मेरे पास डेट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया और मैं ऐड कॉलम में हूँ। ठीक है, यानी मेरा ओरिजिनल कॉलम मॉडिफाई नहीं होगा। और मैं डेट में जाता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, सारे ऑप्शन डेट वाले। क्या करना है, ईयर, ईयर पे के अंदर ऑप्शन आ गया, आप ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड ऑफ द ईयर एक्सट्रैक्ट कर। मैं करता हूँ ईयर पे क्लिक, एक नया कॉलम आ गया जिसके अंदर ईयर आ गया, ईयर एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, फिर से मैं अपना डेट सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ गया मेरा डेट, ईयर। फिर से जाता हूँ, डेट पे गया, फिर मेरे पास ऑप्शन आ गया मंथ का, मंथ के सारे ऑप्शंस आ गए, मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, डेज इन ए मंथ, नेम ऑफ द मंथ। मैं करता हूँ नेम ऑफ द मंथ पे क्लिक और मेरे पास एक नया कॉलम आ गया जिसमें नेम ऑफ द मंथ आ गया। ठीक है, फिर मुझे चाहिए क्वार्टर, तो फिर से डेट पे जाते हैं, क्वार्टर के ऑप्शंस आ गए, क्वार्टर ऑफ द ईयर एक्सेट्रा। देन आपको वीक चाहिए, वीक ऑफ द ईयर, वीक ऑफ द मंथ, डे में डे के सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, लेट से मुझे पता लगाना है कि ये जो डेट है ये कौन सा दिन था वीक का, मंडे था या ट्यूसडे था या वेडनेसडे था। तो मैं जाऊंगा डे एंड आई विल चूज नेम ऑफ द डे। मेरे पास नेम ऑफ द डे आ गया, मंडे ट्यूसडे सैटरडे। एक्सेल में करते तो आपको फंक्शन याद करने पड़ते हैं कि क्या कौन सा फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं और आपका एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है, यूजफुल इंफॉर्मेशन। सिमिलरली मान लीजिए आपको किसी की एज कैलकुलेट करनी है, एक्सेल में कैसे करोगे? माइनस करके 365 से डिवाइड कर लेंगे तो माइन आपको या फॉर्मूला, ईयर कर लेंगे। आई थिंक आप वहाँ पे डेट डी फंक्शन यूज करोगे। डेट डी फंक्शन को आज की डेट से सब्ट्रैक्ट करोगे उस डेट को, तो वहाँ पे फंक्शन यूज करना पड़ेगा डेट डिफ। यहाँ पे आपको कोई फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एज कैलकुलेट कर देगा। कैसे? तो लेट्स ट्राई टू सी। फिर से मैं डेट पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया, डेट में मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है एज। ठीक है, अब एज के बारे में आप पढ़ सकते हो क्या बोल रहा है, क्रिएट ए न्यू कॉलम that contains the duration between the current local time and the values in the selected column। यानी करंट टाइम से जो वैल्यू है सिलेक्टेड कॉलम में उस डेट को वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ एज और मेरे पास यहाँ पे एज आ गई पर डेज में है, तो मैं ईयर में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया ड्यूरेशन, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ टोटल ईयर्स और ईयर आ गए मेरे पास 10। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10। वैलिडेट करते हैं पहली डेट का, पहली डेट कौन सी थी, लेट्स ट्राई टू सी, 1 दिसंबर 2014। 2025 चल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट के साथ आसपास एज हो गई। इज दैट क्लियर? सो इस तरह से आप टोटल ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं सर ये विदाउट। ऐसे आ सकता, सर ये ऐसे आ सकता है 10 ईयर लाइक और मंथ एंड देन डेज, ऐसे आ सकता है क्या? नहीं, आपको अलग अलग कॉलम पे बनाना, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब आएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक टोटल ईयर्स कैलकुलेट करके दे रहा है, कितना टाइम आपको ईयर्स में हो गया सिंस दैट डेट। तो हटा दो, अभी देखो ऊपर आपको दिख रहा है 1.2। ठीक है, तो इसको हम करते हैं होल नंबर, तो होल नंबर में आ गया। हाँ, अब एज वाला कॉलम आप डिलीट कर सकते हो, इस कॉलम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये देखो, ये इसको मैं हटाता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इस कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे सेटिंग, कहने का मतलब है कि इंटरमीडिएट कॉलम क्रिएट हो गया, उसको डिलीट करने के बाद आपके एंड रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। स्पेस की जगह स्प्लिट कर रहे हो आप? नहीं, उससे तो नहीं होगा, वो तो स्प्लिट करना हो गया। हाँ, देख
लेकिन हमें क्या बताना, हमें निकालनी है ड्यूरेशन, आज की डेट से उस डेट तक कितना टाइम हुआ, कितने ईयर्स हो गए, कितने मंथ हो गए, कितने डेज हो गए, ये क्वेश्चन है। हाँ। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 10.4 ईयर्स बताया उसने, ईयर्स में कैलकुलेट। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस। आप मंथ में निकालोगे, फिर उसको 12 से डिवाइड करोगे, फिर मंथ ऐसे आएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन नहीं, आपको वो ड्यूरेशन दे देगा, टोटल ईयर्स में कितनी ड्यूरेशन है, मंथ्स में कितनी ड्यूरेशन है, ठीक है, डेज में कितनी ड्यूरेशन हो गया सिंस दैट डेट। सर पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करना है तो ये तो आज की डेट होगी, मेरे को करंट डेट नहीं, मेरे को एक मिला जहाँ पे मेरे को एक स्पेसिफिक डेट है, मान लीजिए कि एज ऑफ सर्टेन एम्प्लॉइज और व्हाटएवर एज ऑफ सर्टेन डेट, ठीक है, टू कैलकुलेट मे बी व्हाटएवर। सो उसमें उसमें क्या करना है? उसके लिए हमें फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। आप सारे के सारे फॉर्मूले कैसे लिखते हैं पावर बीआई के अंदर? एम में, डेक्स नहीं में, डैक्स में। अच्छा, ठीक है। अभी हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि हमारे पास सिंपल क्लिक वाले कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। गॉट इट। लेकिन अगर हमें फर्दर कस्टमाइजेशन चाहिए तो हमारे यहाँ पे एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका नाम होता है डेक्स, जिसके थ्रू आप अपने फंक्शंस, अपने फॉर्मूलेज आप लिख सकते हैं, अगर ये रिक्वायरमेंट आपकी मीट नहीं कर रहे हैं, ये वाले क्लिक वाले ऑप्शंस, ठीक है। तो सारी कस्टमाइजेशन आप कहाँ करेंगे? डेक्स में। सो ये टॉप ऑफ द शेल्फ में है, ये मतलब ऑफ द शेल्फ इंफॉर्मेशन है या ऑप्शंस है जिसको आप कर सकते हैं, और Correct. लिमिटेड ही होंगे ऑब्वियसली क्योंकि ये यस, ये लिमिटेड ही होंगे क्योंकि ये सारे क्लिक वाले ऑप्शन हैं, ठीक है। अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन कहाँ पे है? डेक्स है, कस्टमाइजेशन, मोर कस्टमाइजेशन। हाँ, तो डेक्स में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है डेट डिफ। डेट डिफ को आप यूज करके किसी भी दो डेट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और आप निकाल सकते हो कि किसी रेफरेंस डेट को यूज करके कितना टाइम हो गया। तो ये ऑलमोस्ट एक्सेल की तरह ही फॉर्मूले यूज होते हैं या उससे वेरिड भी करते हैं? वैसे ही है, थोड़ा डिफरेंट तरीका है, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, अगर पावर बीआई के अंदर 500 डेक्स फंक्शंस हैं, आउट ऑफ 500 200 हैव बीन टेकन एज इट इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, मतलब सो ये करने में इजी रहेगा, माइग्रेट करने में या यूज टू होने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 200 फंक्शन आपके एग्जैक्टली सेम चलेंगे जो आपके एक्सेल में चलते हैं, क्योंकि दोनों माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है। तो जैसे एक्सेल में सम फंक्शन होता है, तो यहाँ पे भी होता है वो सेम। काउंट यहाँ पे भी होता है, काउंट रोज वहाँ पे होता है, यहाँ पे भी होता है। मैंने कहा 200 फंक्शंस आपने एक्सेल वाले एग्जैक्टली यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इफ नेस्टेड इफ ये सारी चीजें चलती रहती हैं वहाँ पे सेम? नहीं, 1 साल लग जाएगा पावर बीआई खत्म होने में। 200 नहीं, 500 करवाऊंगा, तुम बने रहना 1 साल तक, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो ज्यादा कस्टमाइजेशन कहाँ मिलेगी? डेक्स में। अभी हम वो सारे ऑप्शन देख रहे हैं, क्लिक ऑफ द माउस से हमारे पास काम हो रहा है, ठीक है। क्लिक ऑफ द माउस से ईयर आ गया, क्लिक ऑफ द माउस से क्वार्टर आएगा, नेम ऑफ द डे आ गया, नेम ऑफ द मंथ आ गया, एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सी विल वर्क हेयर एज वेल, जब ये पावर क्वेरी से बाहर आ जाओगे। पावर क्वेरी के अंदर नहीं काम करेगा, पावर क्वेरी के बाहर आते ही कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो। यस, तो मान लीजिए कोई, हाँ, वो एरर आपको वार्निंग देगा कि अदर स्टेप्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस स्टेप, ठीक है, डू यू वांट टू प्रोसीड, ऐसे आपको तो वो आपके इम्पैक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंटरमीडिएट स्टेप करने से पहले, डिलीट करने से पहले हमें सोचना है, क्योंकि क्या उस पर कोई डिपेंडेंट स्टेप है या नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट स्टेप भी आपका इम्पैक्ट होगा, तो शायद उसको डिपेंडेंट स्टेप को भी आपको डिलीट करना पड़े, तो हो सकता है कि पूरा आपका सीक्वेंस खराब हो जाए, है ना। तो इसीलिए डिपेंडेंट स्टेप को आपको ध्यान में रख के डिलीट करना है, इंटरमीडिएट स्टेप। नई स्टेप मतलब नई फाइल लोड कर रहे हो?
तो आपको फिर से डेटा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें उसमें हो रही है, लेकिन स्टेप्स जो है फर्दर न्यू क्रिएट आपको फिर से करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, सो फार क्लियर कि हम क्लिक ऑफ द ऑप्शन देख रहे हैं, क्लिक ऑफ से माउस से हमारे क्या क्या ऑप्शन काम हो रहे हैं वो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो डेट फंक्शन हमने देख लिए। डेट में हमारे पास और क्या ऑप्शंस है कि मान लीजिए दो डेट्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो डेट डिफ लिखना पड़ता है एक्सेल में। यहाँ पे आप क्लिक से दो डेट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू सी। ऑर्डर डेट में, ऑर्डर्स टेबल में मेरे पास, अच्छा ये मैंने स्प्लिट करा था, इसको मैं स्प्लिट हटाता हूँ। मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है ऑर्डर डेट, और मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है शिप डेट, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है शिपिंग डेज, मतलब कितना टाइम लगाया मैंने प्रोडक्ट को शिप करने में। तो कैसे निकालेंगे? शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा शिप डेट को सेलेक्ट, कंट्रोल प्रेस करके ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक किया, और मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सब्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन दिख रहा है कहीं? नहीं। तो हम डेट में जा रहे हैं, और डेट में ऑप्शन आ रहा है सब्ट्रैक्ट डेट। सब्ट्रैक्ट डेट करते ही मेरे पास एक नया कॉलम क्रिएट हो गया। देखो वहां पे डेज आ गए, कितने डेज लगे हमें प्रोडक्ट को शिप करने में। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, राइट क्लिक रीनेम, और ये क्या बन गया मेरा? शिपिंग डेज, या डेज ड्यूरेशन बोल सकते हो, शिपिंग डेज बोल सकते हो, हैं? स्टार्टिंग मतलब देखो अभी ये है कि मान लीजिए ऑर्डर प्लेस कब हुआ? 8 नवंबर को। शिप कब हुआ? 11 को। उसने 8 यानी 9, 10, 11, एक को एक्सक्लूड किया है क्योंकि आंसर आया 3, ठीक है। नेक्स्ट डे से उसने कैलकुलेट किया, ठीक है। 9, 10, 11, तो 3 डेज लग गए उसको शिप करने में। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं क्लिक ऑफ द माउस वाले ऑप्शन, ठीक है। बाकी आपको कस्टमाइजेशन करना है तो आपको फॉर्मूलेज बना लिखने पड़ेंगे। ये क्या कर रहा है? ये दो डेट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इंक्लूसिव नहीं है। स्टार्टिंग रेंज 11 माइनस 8। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे 3 डेज आपका। लेट्स ट्राई टू सी। ये हमारे कुछ डेट्स के ऑप्शन हमने देखे। ओके, नंबर, नंबर रिलेटेड ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई टू सी। लेट्स से मेरे पास सेल्स कॉलम है। अब इस सेल्स कॉलम को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है सारे वैल्यूज को, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे? अब की बार फिर से ऐड कॉलम में जाएंगे क्योंकि हमें नया कॉलम ऐड करना है, और इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है जिसका नाम है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर सारे स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेशंस आ गए। ऐड करना है कुछ, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, डिवाइड, मॉडुलस, परसेंटेज, परसेंट ऑफ। साइंटिफिक में जाएंगे, साइंटिफिक ऑप्शन ऑपरेशंस आ गए सारे, स्क्वायर रूट, एब्सोल्यूट, पावर, एक्सपोनेंट, लॉग, फैक्टोरियल, एक्सेट्रा। ट्रिग्नोमेट्री वाले ऑपरेशंस आ गए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हो। राउंडिंग वाले ऑप्शन आ गए, राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड, एंड इंफॉर्मेशन बटन, इज इवन, इज ऑड, साइन, ठीक है। तो ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं जाऊंगा स्टैंडर्ड में, मल्टीप्लाई, और मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है सेल्स कॉलम के वैल्यूज को 100 कर दिया, ओके। और आपका एक नया कॉलम क्रिएट हो गया जहां पे सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई विद 100। इज दैट क्लियर? तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो आप कर सकते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एक्सेट्रा यूजिंग नंबर फंक्शंस। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कंडीशन के बेस पे नया कॉलम ऐड करना है। जैसे एक्सेल में आप इफ एल्स लिखते हैं, राइट? इफ करके अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये आ जाए, एल्स अगर तो ये वैल्यू आ जाए। तो ये काम भी हम माउस से करेंगे विदाउट राइटिंग एनी फॉर्मूला, ठीक है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। फाइनेंशियल्स में मेरे पास एक कॉलम है, लेट मी सी क्या क्या कॉलम है मेरे पास।
प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि प्रॉफिट के अंदर वैल्यू अगर 0 से ऊपर है तो आंसर आ जाए प्रॉफिट, और एग्जैक्टली अगर 0 है तो आंसर आ जाए नो प्रॉफिट नो लॉस, और अगर लेस देन 0 है तो आंसर आ जाए लॉस, ठीक है। तो एक्सेल में करते तो आपको नेस्टेड इफ लिखना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, विदाउट राइटिंग एनी कोड, मैं ऐड कॉलम में जाता हूँ और ऐड कॉलम में मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है कंडीशन कॉलम, ठीक है। कंडीशन के बेस पे नया कॉलम ऐड करना है, मैं कंडीशन कॉलम पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये आगे ऑप्शन, तो नए कॉलम का मैं नाम रख देता हूँ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन आ गया, मुझे किस कॉलम के बेस पे निकालना है, प्रॉफिट। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो आंसर क्या आ जाए, एड क्लॉज, इफ प्रॉफिट इज एग्जैक्टली 0 तो क्या आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस, और बाकी के वैल्यूज एल्स में डाल देते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, ओके करते हैं, और एक नया कॉलम ऐड हो गया जिसके अंदर 3 वैल्यूज आ गई, प्रॉफिट नो लॉस और नो प्रॉफिट, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या आ रही है, प्रॉफिट। लेट मी सी हमारा प्रॉफिट का क्या कॉल ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस देखता हूँ, लेट मी सेलेक्ट, तो ये साहब हर जगह उसके सामने प्रॉफिट 0 आ रहा है। इज दैट क्लियर? और अगर मैं लॉस वाला देखता हूं तो प्रॉफिट कॉलम में नेगेटिव वैल्यू, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल कॉलम, राइट। एडिंग ए न्यू कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, ठीक है। एंड you have done again without any writing any formula, just using your mouse, okay. Is that clear what is a conditional column? okay. तो नंबर फंक्शन हमने देखे, असाइनमेंट, ठीक है। अब ये असाइनमेंट आपका पावर क्वेरी पे बेस्ड है, ठीक है। और पावर क्वेरी में आपको कुछ पहले डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है और फिर आपको उसको आंसर को प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिएट ए विजुअल टू डिस्प्ले एवरेज शिपिंग डेज पर स्टेट। और कौन सा डेटा यूज करना है, ऑर्डर टेबल। मुझे देखना है हर स्टेट कितना टाइम लगा रहा है प्रोडक्ट को शिप करने में ऑन एन एवरेज। और अभी मैंने दिखाया था शिपिंग डेज कैसे कैलकुलेट करा था मैंने, ठीक है। तो आपको शिपिंग डेज सबट्रैक्ट वाला करके आपको ऑप्शन निकालना है, पहले कितना टाइम लगाया और फिर उसको चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करना है कि ऑन एन एवरेज एवरी स्टेट हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, ठीक है। एवरेज लेना है, एग्रीगेशन क्या लोगे, एवरेज, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइफरकेट द रीजनल सेल्स काउंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब मुझे देखना है प्रॉफिट वाली कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और लॉस वाली कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अभी मैंने निकाला था कंडीशन कॉलम कैसे, तो आपको कंडीशन कॉलम क्रिएट करना है और उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है, चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करना है कि प्रॉफिटेबल कितनी ट्रांजैक्शंस है और लॉस वाली कितनी सेल्स ट्रांजैक्शंस है। पाई चार्ट विल नॉट बी द राइट वन, क्योंकि मैंने क्या बोला है, काउंट, राइट। तो मे बी बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, क्रिएट ए विजुअल टू डिस्प्ले द सेल्स पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द वीकडे। अब मुझे सेल्स पैटर्न देखना है, तो जनरली स्पीकिंग हमें क्या लगता है कि सेल्स ज्यादा कौन से दिन होती है, फ्राइडे को या सैटरडे को। पर हम डेटा के थ्रू देखना चाहते हैं कि कौन से वीक डे में सेल्स कितनी हो रही है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डेट में से, ऑर्डर डेट से आपको निकालना है नेम ऑफ द डे। उसके बाद फिर आपको चार्ट बनाना है टू शो कि कौन से दिन में कितनी सेल्स हो रही है, सैटरडे को कितनी हो रही है, मंडे को कितनी हो रही है, संडे को कितनी हो रही है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, क्रिएट ए एम्प्लॉय कोड
और एम्प्लॉय कोड का क्या लॉजिक होगा? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट नेम एंड लास्ट 4 डिजिट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। तो इसके लिए मैं आपको एक डिफरेंट डेटा सेट दूंगा, ठीक है, जिसका नाम है एम्प। तो मान लीजिए इसमें कॉलम है मेरे पास एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। तो क्या बनेगा हमारा एम्प आईडी, एम्प कोड क्या बनेगा? रमेश गुप्ता का आर, गुप्ता से जी, RG001, ये एम्प कोड बनेगा। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट नेम एंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो आज जो पढ़ाया है उसी के बेस पे आप इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर कैसे निकालोगे? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेफ्ट। गुप्ता से जी कैसे निकालोगे? डिलिमिटर है, स्पेस, तो स्पेस के बाद राइट में आप डिलिमिटर। हाँ, या तो स्प्लिट कर लो, आपका अपना लॉजिक आपको सोचना है, ठीक है। और EID से लास्ट 3 डिजिट कैसे निकालोगे? एक्सट्रैक्ट लास्ट। एक्सट्रैक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर सारे अलग अलग कॉलम में वैल्यूज आ जाएगी, फिर उनको मर्ज कर दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्रिएट ए विजुअल टू डिस्प्ले मंथली बर्थडे स्टेटस ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। अब मुझे देखना है कि हर मंथ में कितने लोगों का बर्थडे आ रहा है, कितने एम्प्लॉइज का बर्थडे आ रहा है। जैन में कितने लोगों का बर्थडे है, फेब में कितने लोगों का बर्थडे है, मार्च में कितने लोगों का बर्थडे है, ये मुझे देखना है। तो यस, तो आपको मंथ निकालना पड़ेगा। ये डेटा है, इसके अंदर आपके पास एक कॉलम है जिसका नाम है DOB। DOB से आप मंथ निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा? बर्थडे मंथ। और फिर आपको विजुअलाइज करना है, बताना है कि हर मंथ में कितने बर्थडे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है जो पावर क्वेरी रिलेटेड आपको करने हैं, जो आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने, ठीक है। कंटिन्यू करें या स्टॉप करें? स्टॉप या कंटिन्यू? चलो एक लास्ट ऑप्शन कर देते हैं, ठीक है। मर्जिंग शीट्स, ठीक है। अगर मेरा डेटा 2 अलग अलग टेबल में है, ठीक है, मेरे कुछ कॉलम पहली टेबल में है, कुछ कॉलम मेरे सेकंड टेबल में है, और मुझे सारे कॉलम एक ही टेबल में चाहिए, तो एक्सेल में कैसे करोगे? VLOOKUP लगाओगे, ठीक है, या इंडेक्स मैच करोगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ माउस से मर्ज कर सकते हो शीट्स को, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी। तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ एक। मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट टेबल है जिसके अंदर मेरे पास एक कॉलम है प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का नाम। 10 प्रोडक्ट है, जैसे 1 है एयर कंडीशनर, 2 है रेफ्रिजरेटर, एक्सेट्रा। इस टेबल में सिर्फ क्या है? प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम्स। एक और सेकंड टेबल है जिसके अंदर है प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल में क्या है? प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट की क्लास क्या है, और प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। अब मुझे क्या चाहिए? मैं एक ही टेबल में चाहता हूं कि प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स एक ही टेबल में आ जाए, यानी कलर, क्लास, यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्ट का नाम एक्सेट्रा, वो सब एक ही टेबल में आ जाए। अभी नाम अलग टेबल में है और प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स एक सेपरेट टेबल में। तो एक्सेल में होता है तो आपको VLOOKUP लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे करता हूँ। सो यू कैन सी यूजिंग क्लिक ऑफ द माउस आप कैसे करेंगे। तो मैं डेटा लोड कर लेता हूँ, होम पे गया, न्यू सोर्स, एक्सेल वर्कबुक, एंड आई विल लोड द डेटा विच इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। सेलेक्ट किया, ओके, प्रोडक्ट टेबल लोड हो गई। राइट क्लिक करते हैं, रीनेम, इसका नाम कर देते हैं प्रोडक्ट। फिर से न्यू सोर्स करते हैं, एक्सेल वर्कबुक, प्रोडक्ट डिटेल्स, ओपन,
डेटा लोड, और इसको रीनेम कर देते हैं एज प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, दोनों टेबल आ गई। अब प्रोडक्ट टेबल में मुझे प्रोडक्ट डिटेल्स की कॉलम चाहिए, तो प्रोडक्ट टेबल सेलेक्ट करी, होम पे गया, ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर आई हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड एज मर्ज क्वेरी। तो मर्ज क्वेरीज में जाएंगे, और मर्ज क्वेरीज में मेरे पास ऑप्शन है मर्ज क्वेरीज, और सेकंड ऑप्शन है मर्ज क्वेरीज एज न्यू। पहला ऑप्शन चूज करेंगे तो सेकंड टेबल की कॉलम पहली टेबल में आ जाएंगे, और मर्ज क्वेरीज एज न्यू करेंगे तो एक थर्ड टेबल बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपने दो फाइल पे डाउनलोड, वो में कॉमन वर्ड था प्रोडक्ट आईडी, यस, अगर वो नहीं है देन तब नहीं कर सकते आप। तब तो अगर आप वी लुकअप में कोई कॉमन फील्ड ना हो तो वी लुकअप लगा सकते हो। कोई लिंकिंग फील्ड होना चाहिए ना। अगर लिंकिंग फील्ड नहीं है तो यू कैन नॉट पुल द डेटा फ्रॉम अदर टेबल्स, है ना। कॉमन फील्ड होना चाहिए, और वही रूल आपका वी लुकअप का भी है और इंडेक्स मैच का भी है। जब तक लिंकिंग फील्ड नहीं होगा तो हाउ कैन यू लिंक टू टेबल्स, हाउ कैन यू गेट द वैल्यू फ्रॉम अदर टेबल। इज दैट क्लियर? तो मैं जा रहा हूँ मर्ज क्वेरीज, और मैं पहला ऑप्शन यूज करता हूँ मर्ज क्वेरीज। तो पहली टेबल आ गई, सेकंड टेबल चूज कर लो, किसके साथ मर्ज करना है, प्रोडक्ट डिटेल के साथ। अब जो कॉमन फील्ड है उस पर क्लिक करना है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ क्लिक किया, प्रोडक्ट आईडी यहाँ क्लिक किया, दैट्स ऑल। आपका वी लुकअप लग गया, वी लुकअप लग गया। अब आपको क्या करना है, ओके। ओके करते ही प्रोडक्ट टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो गया जिसका नाम है प्रोडक्ट डिटेल्स। इसके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सपैंड बटन। और मुझे सेकंड टेबल से क्या क्या चाहिए वो पिक एंड चूज कर लेता हूँ। प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए क्योंकि वो पहले से ही है, मुझे चाहिए कलर, क्लास एंड यूनिट कॉस्ट। ओरिजिनल नेम नहीं चाहिए, ओके। अब देखो आपके सारे कॉलम इस टेबल में आ गए, प्रोडक्ट नेम आ गया, कलर आ गया, क्लास आ गया, यूनिट कॉस्ट आ गया, एक ही टेबल। इज दैट क्लियर? So this is ये ओके, वेरी गुड। अगर एबीसी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये कॉलम के अंदर कैसा डेटा है, टेक्स्ट। अगर आपका 1 2 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, होल नंबर। ठीक है, अगर डेट होगा तो कैलेंडर सिंबल आएगा। ठीक है, ये डेटा टाइप बता रहा है कि उस कॉलम में कैसा डेटा टाइप है। तो लेट मी शो यू। नहीं, ये आपका ये बाय डिफॉल्ट है, ये पावर क्वेरी का फीचर है। वो आपको बता रहा है कि डेटा टाइप क्या है उस कॉलम के अंदर। आप चेंज भी कर सकते हो डेटा टाइप अगर आपको ही पसंद नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स में जाता हूँ, ऑर्डर आईडी के सामने कैलेंडर सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर डेट में क्या है, डेट्स है। शिप डेट में कैलेंडर आ रहा है, क्या है, डेट्स। लेट्स ट्राई टू सी, रो आईडी में क्या आ रहा है, 1 2 3 होल नंबर। और क्या क्या डेटा टाइप्स है हमारे पास, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास डेसिमल नंबर्स का ऑप्शन है जिसमें आपको 1.2 दिखेगा, फिक्स डेसिमल नंबर है, परसेंटेज, डेट टाइम, ये सारे हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स में जाता हूँ, सेल्स में क्या दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3 तो नहीं दिख रहा, क्या लिख रहा है, 1.2 मतलब डेसिमल्स। इज दैट क्लियर? और अगर मैं सेल्स को होल नंबर में चेंज कर दूं तो इसको हम चेंज कर देते हैं होल नंबर, तो डेसिमल गायब हो गए। तो यू कैन चेंज द डेटा टाइप एज वेल इफ यू वांट। ठीक है, बट सेल्स के लिए अप्रोप्रिएट डेटा टाइप क्या है, डेसिमल्स। ओके, ऐड न्यू स्टेप। ओके, तो मुझे तो मैं उसको नहीं, राउंड अप तो हो जाता है, नेक्स्ट वैल्यू पे राउंड अप कर देता है वो, राइट। तो डेटा टाइप तो वही है, डेटा टाइप अब वही रहेगा जब तक आप मैन्युअली चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर हाउ टू मर्ज? ठीक है, तो मर्ज कब करते हैं, जब हमें किसी दूसरी टेबल से कुछ कॉलम चाहिए होते हैं। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन आता है अपेंड।
अब मुझे दोनों टेबल को एक के नीचे एक रोज को पेस्ट करना है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे बोलेंगे अपेंड, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे अपेंड, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, ये मैं बंद कर देता हूँ। मेरे पास एक फाइल है, एक्सेल फाइल है, इसका नाम है सेल्स नवंबर। उसके अंदर मेरे पास नवंबर महीने की सेल्स है, डेट, सेल्स अमाउंट एंड क्वांटिटी, ठीक है। एक और एक्सेल फाइल है जिसके अंदर दिसंबर महीने की सेल्स है, डेट, सेल्स एंड क्वांटिटी। अब मुझे दोनों को कंसोलिडेट करके एक ही फाइल बनानी है, सेल्स, जिसके अंदर नवंबर और दिसंबर दोनों की सेल्स होनी चाहिए। तब एक के नीचे एक रो को हमें ऐड करना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपेंड, ठीक है। अपेंड करने के कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी एग्जैक्टली सेम दोनों टेबल में। सेकंड, डेटा टाइप शुड आल्सो बी सेम, ठीक है। यानी फर्स्ट कॉलम का डेटा टाइप अगर डेट है तो सेकंड टेबल में भी फर्स्ट कॉलम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेट ही होना चाहिए, तभी अपेंड कर सकते हो। एंड थर्ड, कॉलम नेम शुड आल्सो बी सेम, ठीक है। अगर सीक्वेंस चेंज डिफरेंट हो जाएगा तो हम अपेंड नहीं कर सकते, तो कॉलम नेम शुड एग्जैक्टली बी सेम। हम्म नहीं। अब ये अगर ऐसे अपेंड कर दोगे तो खुद चेंज करना, डेटा चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक करना पड़ेगा। हाँ, उसको ठीक कर लो, राइट। बस अपेंड का रूल यही होता है कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, डेटा टाइप भी सेम और कॉलम के नेम शुड बी सेम, तभी वो नीचे ऐड करेगा ना उसको। तो लेट्स ट्राई टू सी, इस डेटा को भी लोड कर लेते हैं। फिर से मैं गया न्यू सोर्स, एक्सेल वर्कबुक, पहली टेबल का नाम है सेल्स नवंबर, इसको ओपन किया, इसको लोड कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं, ये टेबल मेरी हो गई सेल्स नवंबर। अगर टैब्स एक ही शीट में अलग अलग शीट्स होंगी तो एक बार में कर सकते हैं, अलग अलग एक्सेल फाइल है तो एक बार में। अगर एक ही एक्सेल फाइल के अंदर मल्टीपल टैब्स हैं, उनको सबको एक साथ कर सकते हो। हाँ, पर अलग अलग फाइल है तो एक बार में, ठीक है। तो दिसंबर, इसको भी ले आते हैं। राइट क्लिक, रीनेम। तो दोनों टेबल आ गई। अभी देखो, सबसे पहले कॉलम नेम हमारे सेम नहीं है, मैंने यहाँ पे डेट है, सेल्स अमाउंट है, क्वांटिटी, और सेकंड टेबल में क्या है, डेट, सेल एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो मुझे इसको चेंज कर देता हूँ, इसको राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं। अब सेम हो गए। अब हम जाते हैं मर्ज क्वेरीज के नीचे एक ऑप्शन है जिसका नाम है अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज पे क्लिक किया, अपेंड क्वेरीज, आप दोनों टेबल को सेलेक्ट कर लो, टेबल टू अपेंड, सेल्स नंबर के साथ किसको अपेंड करना है, सेल्स नंबर, ठीक है। दैट्स ऑल, आपके पास ऑप्शन आ गया अपेंडेड क्वेरीज, और आपको अगर क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो सारा आपका डेटा इसका एक जगह दिखाई देगा। तो पहले सेल्स नवंबर में 500 रोज थी, सेल दिसंबर में भी 500 थी। अगर आप अपेंड कर देंगे तो कितनी टोटल हो जाएंगी सेल्स नवंबर में, 1000। और लास्ट में जब आपका सारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो आप क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई। जब तक ये नहीं किया तब तक आपका कोई भी चेंज इंप्लीमेंट नहीं होगा डेटा सेट में। आप देखो, ये सारे चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हैं हर टेबल, जितने अब तक आज हमने क्लास में करे। और अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको एरर भी फ्लैग करेगा। कोई एरर नहीं आया, ठीक है। और अब हम देखते हैं अपना, कितनी रोज आ गई सेल्स नवंबर में, 1000, ठीक है जी। तो अपेंडिंग इज क्लियर। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो tomorrow we will start from another very good feature of Power Query,
which I would say is an AI feature called as column from example. ठीक है, तो मशीन लर्निंग का कुछ सर मेरा पार्ट। एक क्वेश्चन है हाँ जी बोलिए। सर, जैसे ही आपने अभी तक शुरू से लेके अभी तक जो भी कराए सारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है या अलग से आप कोई शीट देंगे? अलग मैंने एक असाइनमेंट दिया है आज आपको। आप असाइनमेंट की अच्छा, बात कर रहे हैं? ये वाला नहीं, एक इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन। इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन लास्ट क्लास में, अच्छा जब कोर्स अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक। सर अभी कितना और बाकी है पूरे कोर्स में? आई एम सॉरी, अभी और कितना कोर्स बाकी है सर? अभी अराउंड 60% हुआ है, 40% बचा है। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डेटा विजुअलाइजेशन कर लिया, पावर क्वेरी कर लिया, थोड़ा सा किया है, पावर अराउंड 60% के आसपास हुआ है, 30-40% कल हो जाएगा। कल पावर क्वेरी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम डेटा मॉडलिंग करेंगे। डेटा मॉडलिंग में कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं बिटवीन टेबल्स, और उसके बाद हम कैलकुलेटेड ऑब्जेक्ट करेंगे, उसमें हम सीखेंगे डेक्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा अभी बचा हुआ है। मॉडलिंग से पहले हमने डेटा विजुअलाइजेशन और पावर क्वेरी दो ही किया है। हाँ, ठीक है जी, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके देन, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।